दोस्तों, welcome to Kalam IAS UPSC CSET. In a series of lectures, today we would be discussing our next topic, which is time and work. This is a very important topic. Multiple questions have come from this topic, and this is a little bit complicated topic. Okay, and it requires rather than a formula, it requires a practical approach and understanding of the situation. सिंपल लॉजिक से अपन को अप्लाई करना पड़ेगा. सो बी प्रिपेयर्ड. This is a little bit difficult question, but so what do I mean by difficult? It is not scary. It means you need to practice it more. So you need to devote more time. ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा आपको इसमें और ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी. So I have included all the important things, all the important works in this, all the important formulas, the solved examples, and then we would be emphasizing more upon the PYQs, because ultimately PYQs is the key which we need to solve. Okay. So what is the basic idea behind? Suppose तो किसी भी काम को पूरा एक दिन में कितना काम कर रहा है बंदा, एक दिन में मान लो x काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 10x काम करेगा. और टोटल काम करना था 100x का, तो 100x काम करने में कितने दिन लगेंगे? इसको 100 दिन लगेंगे. सो अल्टीमेटली क्या है? Days required to complete the work is equals to 1 upon work done in 1 day. 1 upon work done in 1 day कितना होता है? एक दिन में x काम कर रहा था ना वो x, तो days required कितना हो गया? 100 दिन हो गए. 100x upon x. और एफिशिएंसी कितनी होती है? एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू इनवर्सली रिलेशन टू टाइम टेकन. कोई भी काम आप 10 दिन में कर रहे हो और आपका दोस्त है, आपका बंदा उसको 5 दिन में कर ले रहा है, मतलब कम टाइम में कर ले रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है. तो जहाँ टाइम कम होगा वहाँ एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी. सो ये है. ये फिर एक फॉर्मूला है, M1 completes the can do W1 in D1 days, T1 hours each day with efficiency E1, and M2 do W2 work in D2 days, T2 hours in efficiency E2. देन ये इक्वेशन होती है, फॉर्मूला होता है. तो M1 ने D1 में कितना काम किया T1 से, और कितना आउटपुट आया, उसका एफिशिएंसी हो जाएगा E1 अपॉन वर्क डन बाय W1 इज इक्वल्स टू M2 D2 T2 E2 अपॉन W2. ठीक है, दिस इज द बेसिक आइडिया. So these formulas, this is not actually a formula, this is just an idea. More clarity will come when we will be studying the solutions and the questions regarding it. Okay, so just need to remember what we need to do. Same thing. If M1 can do W1 in D1 days, H1 hours, M2 can do W2 D2 H2 hours, what are the same rate? Same rate means efficiency is same. So in the above formula it will be 1 man 1 day H hours, total work W1. Second man second day second hour work done W2. थर्ड होगा तो M3 D3 H3 अपॉन W3. You just need to remember this equation. This is very important. Okay, now similarly next formula is A can do a piece of work in P days, B can do in Q days, A and B together than none. A P दिन में काम करता है, B Q डेज में काम करता है, A प्लस B कैसे काम करेंगे? सो ये हो जाता है 1 PQ अपॉन P प्लस Q. ठीक है, मतलब 1 बाई P प्लस 1 बाई Q. अभी डिराइव कैसे हुआ उसको देखते हैं. ए बंदे ने पूरा काम किया P डेज में. सो एक दिन में कितना काम किया उसने? 1 बाई P. ठीक है, और B ने पूरा काम किया Q डेज में, तो एक दिन में कितना काम किया उसने? 1 बाई Q. सो इट इज़ 1 बाई P प्लस 1 बाई Q. ठीक है, सो एक दिन में A प्लस B ने कितना काम किया? 1 बाई P प्लस 1 बाई Q, P प्लस Q अपॉन पी क्यू. अब टोटल वर्क कितना करेंगे दोनों, तो उसका रिवर्स हो जाएगा कि इतने दिन में
टोटल काम कर देंगे, एक दिन का काम इतना है, सो टोटल टाइम कितना लगेगा उनको, 1 एक दिन का काम, सो पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू. So you don't go into the details of the derivation, just remember the key concept कि if A can work in P days, B can work in Q days, so A plus B together will work in P Q upon P plus Q days. Just remember the simple fact and simple formula, and rest would be very easy for us to decipher the things. And time and work. Now what it is, if a person can do a certain task in T hours में उसने कुछ काम किया, then in 1 hour it would be 1/t of portion of the task. So 1 घंटे में 1/t hours का काम कर लेगा. टोटल काम उसने T hours में किया, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/t. और A hours में किया और B ने वर्क किया B hours में, टुगेदर सेम वाला पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू वाला चीज़ ये कि A ने किया A में और B ने इसको काम किया B hours में. अब A प्लस B मिलके कितने में काम करेंगे, तो ये हो जाएगा AB अपॉन A प्लस B. ठीक है, फिर वही आता है, if A works are done in A hours more than A and B combined, whereas B does the work in B hours more than A and B combined, so together will be under root of A plus B. These are the simple formulas, but to be honest, you don't need to remember this formula. This is just for the sake of mentioning it. We would be solving the questions based on these terms and these things irrespective of applying of the formula. We will be doing on the unitary method कि 10 दिन में इतना काम किया तो 1 दिन में कितना काम करेगा. That is the only concept which we would be using in this topic, because these formulas are very complicated and formulas are easy, but we need to understand which formula is applicable on what time and what consequences, so that makes them a little difficult. So that's why we would not be using them, or similarly we would be just using the unitary method and solving it. Okay, so these formulas are just for the reference. Now same thing, if A does a particular job in A hours and A plus B together do in T hours, और B को कितना टाइम लगेगा, A ने A hours में किया, A and B together ने T hours में किया, अब B alone कितना टाइम लगेगा, AT upon A minus T. If you want you can remember, but I would suggest not to remember these formulas. We will be, how the approach we will be following in consequent questions that can be applied, that is little longer, but if you learn this formula, this can save all of your time, but I believe it is little difficult to implement it. Not difficult but complicated. So it's on your wish. If you want to learn, then you can learn and apply it, and otherwise जो अप्रोच अपन फॉलो करेंगे सॉल्व करने के लिए वो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हो. ठीक है, सो ये फंडा, इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू फिल द टैंक. फिर आता है अपना टैंक वाला कि पानी भर रहा है इसमें, अब फिल करना है तो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा अपना, लेकिन इसको खाली करना है, पानी निकालना है तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा अपना. देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क. देयर इज नो एनी मच डिफरेंस ऑफ इट, बस जस्ट टू मेंशन अबाउट इट. If the objective is to empty the tank, then outlet pipes do positive work where the inlet pipes do negative work. तो यहाँ वाला पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, ये वाले पाइप पर नेगेटिव वर्क हो जाएगा, बस उसका यूज़ नहीं आएगा ज़्यादा, तो अपन ज़्यादा उस पर परेशान नहीं होंगे. लेट्स सी द प्रैक्टिस क्वेश्चन बिफोर टू सी how to approach this thing and how the questions are solved, and then afterwards we would be solving the PYQs. So see, Girish and Harish can complete a job in 24 days. तो गिरीश प्लस हरीश ने 24 डेज में पूरा जॉब कर लेते हैं. गिरीश अलोन कैन कंप्लीट इन 32 डेज, लेकिन सिर्फ गिरीश अलोन करता है तो 32 डेज करता है. मतलब गिरीश का एक दिन में कितना वर्क होता है, 1/32 वर्क, तभी तो 32 दिन लगते हैं उसको करने में. बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज. 8 दिन दोनों ने टुगेदर काम किया, तो 8 दिन में गिरीश ने कितना काम कर लिया होगा, 8/32. ठीक है,
उसके बाद गिरीश चला गया। अब बाकी के रिमेनिंग डेज ने हरीश ने अकेले काम किया। अपन को निकालना है हरीश को कितना टाइम लगा होगा। अगर गिरीश प्लस हरीश दोनों 24 दिन में करते हैं और अगर एफिशिएंसी नहीं दी है, ठीक है, सो ये गिरीश 8 दिन में इतना काम करेगा, लेकिन टोटल गिरीश प्लस हरीश 8 दिन में कितना काम करेंगे? 8/24, कि दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/24, दोनों मिलके 1/3 काम कर लेंगे। ठीक है, अब बचेगा 2/3 काम, और 2/3 काम इसको अकेले करना है। किसको? हरीश को अकेले करना है। सो अब हरीश का एक दिन में वर्क कितना है? हरीश का एक दिन में वर्क होएगा जितना टोटल वर्क हो रहा है एक दिन में माइनस गिरीश का वर्क। अब इसको कैसे समझोगे? इसको ऐसे समझोगे, ये फील्ड है, ये पूरा एक दिन में काम हो रहा है, इतना काम एक दिन में हो रहा है, ठीक है, और इसमें से इतना काम गिरीश कर रहा है एक दिन में। एक दिन की बात चल रही है, तब हरीश कितना काम कर रहा है एक दिन में? हरीश इतना काम कर रहा है एक दिन में, बचा हुआ हिस्सा, क्योंकि इतना है टोटल एक दिन में काम हो रहा है ना। तो ये कैसे निकालेंगे अपन? हरीश का एक दिन का काम, टोटल एक दिन का काम माइनस गिरीश का एक दिन का काम, इज इक्वल टू टोटल एक दिन का काम कितना है? 1/24, और इसका एक दिन का काम कितना था? 1/32, ठीक है। सो हरीश का एक दिन का काम हो जाएगा 1/96, ठीक है। अब उसको 2/3 ऑफ काम करना है, तो कितना दिन लगेगा? तो सिंपल, 2/3 इंटू 1/96 इंटू 96 हो जाएगा, तो 64 डेज आ जाएगा। और यही लिखा है यहाँ पे, और सेम कंसेप्ट लिखा है कि टोटल वर्क एक दिन का हुआ 1/24, फिर 1/3 काम हो गया उसने 8/24 से ही अपना आ गया, फिर रिमेनिंग वर्क 2/3 बचा, जो 2/3 का काम बचा था उसका, और उसका एक दिन का काम कितना होगा? 1/96, तो यहाँ से 1/96 आ गया इसको माइनस करने से। अब ओनली 2/3 वर्क इज लेफ्ट, हरीश विल डू द रिमेनिंग वर्क, 2/3 इंटू 96, 64 डेज, ठीक है, गॉट इट। सो ये मेरा कहने का मतलब है, इसमें कोई फॉर्मूलाज या कुछ नहीं लगाना है, आपको यूनिटरी अप्रोच लगानी है कि 24 दिन में टोटल काम हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा? 1/24। जस्ट दिस इज कॉल्ड द यूनिटरी अप्रोच। जस्ट डिवाइड, ब्रेक द क्वेश्चन into terms, 1 day, 1 hour, 1 minute, 1 second, according to the demand and need of the question, and then we proceed into the multiple। एक दिन में इतना काम हो रहा है x, तो 10 दिन में कितना होगा? 10x। एक घंटे में अगर y काम हो रहा है तो 10 घंटे में कितना काम होगा? 10y। So that is the basic idea, that is the basic philosophy which we would be using in these lectures, in these sessions. Okay. Now what is next ahead is our next question. What is the question says? A and B together do a piece of work in 36 days, B and C in 40। तो A प्लस B कर रहे हैं कितने में? 36 दिन में। B और C कर रहे हैं कितने में? 48 डेज में। A और C कर रहा है कितने में? 72 डेज में। अब अकेले निकालना है कि A को कितना टाइम लगेगा, B को कितना टाइम लगेगा, C को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सो अब A और B का एक दिन में कितना काम हो रहा है? 1/36। B और C का 1/48, A और C का 1/72। नाउ ठीक है, टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है? 1/36 प्लस 1/48 प्लस 1/72 इज इक्वल्स टू 2A प्लस B प्लस C। तीनों इक्वेशन को अपन ने ऐड कर दिया। सो ये कितना हो जाएगा? ये होगा अपना एलसीएम आप लोगे तो इसको सॉल्व करके आएगा 9/144, ठीक है, आ गया, क्योंकि इनका एलसीएम होगा अपना, वो होगा आपका 36 2 72 होता है, 72 प्लस 36 करोगे 8, 108, ठीक है।
सो दिस इज़ द थिंग। सो एलसीएम सॉल्व करने पर आपको इतना आएगा 9/44, इसको और सॉल्व करोगे तो 1/16 सिंप्लीफाई करने पे इज इक्वल्स टू 2abc। सो a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेंगे इज इक्वल्स टू 1/32। 1/32 ऑफ द वर्क दे विल कंप्लीट इन 1 डे, तीनों मिलके। ठीक है, तीनों मिलके इतना काम करेंगे। अब आपको निकालना है ए का टाइम। ए का वर्क डन, अपन को ए बी सी डी तीनों का वर्क डन निकालना है, तीनों का साथ में मिलकर अपन ने निकाल लिया, ये टुगेदर फिनिश 132 पार्ट ऑफ द वर्क इन 1 डे। ठीक है, अब वर्क डन बाय ए इज, अब बी और सी कितना कर रहे हैं, बी और सी मिलके करेंगे 48 डेज में। नाउ बी एंड सी विल डू द वर्क इन 48 डेज। सो एक दिन में बी एंड सी कितना काम करते हैं, 1/48। और तीनों ए प्लस बी प्लस सी कितना काम करते हैं एक दिन में, 1/32, और ये है 1/48। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/32 माइनस 1/48 इज इक्वल्स टू 1/96। तो टोटल कितना वर्क कराएगा ए को, 96 डेज। समझ आया? ऐसे सिमिलरली तीनों इक्वेशन को माइनस करोगे, ए और बी में सी को कितना टाइम लगेगा, 1/32 माइनस 1/36, 288 डेज। ये okay, so this is the only thing which we need to do, how to work upon the unitary method and how to proceed and how to solve the further questions which we will be solving. So this is the only thing which you need to remember. Now let's come to the previous year questions. Our approach would be same here. First I will read the question, then I will show you how how you can solve the question. Okay, so this is the basic things. So what is the first question? 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. ये piece of work है, इसको ख़त्म करने में 30 days लगता है. In how many days 12 men and 24 women can do the same piece of work? तो 30 दिन में कितने काम करते हैं, 24 men प्लस 12 women, 30 days. अब 12 men प्लस 24 women कितना टाइम लगेगा वो निकालना है. 1 मिनट का टाइम है. अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके देखिए इसमें कि कितना क्या टाइम लगता है आप लोगों को, फिर उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे. रिमेंबर 24 मैन को लगता है 24 मैन एंड 12 वेमेन कैन टेक अ टाइम 30 days एंड 12 मैन एंड 24 वेमेन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क. तो हाउ मेनी डेज इज रिक्वायर्ड. 2 मिनट का ब्रेक है. 2 मिनट आप लोग 1-1.5 मिनट सॉल्व कीजिए इसको. ट्राई टू अप्लाई द थिंग्स यूनिटरी मेथड, फिर उसको अपन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है. 2022 का क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. सो देखिए ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट क्यों है, बिकॉज अपन को ये देखना, अपन ने कंसेंट पढ़ा था एफिशिएंसी का, लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी कहीं नहीं दिखा है कि यूनिफॉर्म रेट से कर रहे थे, और ये भी कहीं नहीं लिखा है कि मैन की एफिशिएंसी विमेन की एफिशिएंसी से ज़्यादा है या मैन की एफिशिएंसी और विमेन की एफिशिएंसी सेम है. सो इस क्वेश्चन में तीन सिनेरियो बन सकते हैं. पहला, अगर आप मान के चलो
men are more efficient than women. ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, 24 men है और 12 women है, इनको लग रहे थे 30 days. अब क्या हो गया है, men आधे हो गए और women डबल हो गई हैं. ठीक है, men आधे हो गए, women डबल हो गई हैं. अगर men ज़्यादा एफिशिएंट थे, अगर men ज़्यादा एफिशिएंट थे विमेन से, तो मोर एफिशिएंट वाला बंदा कम हो गया, कम एफिशिएंट वाले बंदे ज़्यादा हो गए. सो ओवरऑल डेज जो होंगे वो 30 से तो ज़्यादा होंगे. आप ऐसे समझो, एक मैन है और एक विमेन है, या 2 मैन है और एक विमेन है. ठीक है, ये 2 मैन की एफिशिएंसी, मतलब एक मैन एक विमेन से ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा एफिशिएंट काम करता है. ठीक है, सो अगर आपने 12 मैन कम कर दिए और 12 विमेन ही बढ़ा दी, बट 12 मैन ज़्यादा काम करते 12 विमेन से. सो जितना काम 12 विमेन करेंगी, जितने दिन में 12 विमेन काम करेंगी, उससे कम दिन में 12 मैन काम कर देते. सो ओवरऑल 30 डेज जो था इसमें, उस 30 डेज में अगर आपने 12 मैन को हटा दिया, 12 विमेन को डाल दिया और मैन ज़्यादा एफिशिएंट थे, तो अब 30 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा उस काम को सॉल्व करने में. सो अगर ये एफिशिएंसी होती तो इट वुड बी ग्रेटर देन 30 डेज. ठीक है, बट सेकेंड सिनेरियो, विमेन आर मोर एफिशिएंट, विमेन मोर एफिशिएंट होती मैन से, तो ऑब्वियसली अगर आपने जो चीज़ विमेन ज़्यादा एफिशिएंट हैं, 12 नई विमेन डाल दी और 12 मैन कम कर दिए, सो विमेन आपने ज़्यादा ऐड कर दी, सो विमेन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, जो ज़्यादा काम कर रहा है, वो ज़्यादा लोग हैं तो वो जल्दी काम करेंगे. सो इट वुड बी लेस देन 30 डेज. ठीक है, तो 30 डेज से कम भी हो सकता है. अब थर्ड केस क्या आता है, थर्ड केस आता है दोनों की एफिशिएंसी सेम है, दोनों की एफिशिएंसी सेम है. सो आपने क्या किया है, 24 मैन 12 विमेन थी, आपने 12 मैन कर दिए और 12 विमेन कर दी, मतलब 12 लोग हटाए और 12 लोग ऐड कर दिए. अगर एफिशिएंसी सेम है तो मैन है या विमेन है फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक बराबर हैं. तो अल्टीमेटली पहले 36 लोग थे, अभी भी 36 लोग हो गए, तो टोटल एफिशिएंसी 30 दिन में काम हो रहा था, 30 दिन में ही काम होगा अभी भी. ठीक है, सो केस 1 में क्या हुआ था अपना, ग्रेटर देन 30 डेज. केस 2 में क्या हुआ था, लेस देन 30 डेज. केस 3 में क्या हुआ, एग्जैक्टली 30 डेज. बट since the efficiencies of both men and women are not given in this question, who was more efficient, so either of the three cases possible. So that's why the most appropriate answer would be D. Okay, because now let's see, it is a question of 2022, official answer key is not yet out, but most probably the answer should be option number D, as UPSC has not mentioned any of the thing of the regarding the efficiency, कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन कम एफिशिएंट है. इसलिए इन चीज़ों में अपन बोलते हैं कि डेटा इज़ इनसफिशिएंट, डेटा इज़ इनसफिशिएंट टू टेल कम दिन ज़्यादा कम लगेंगे दिन या ज़्यादा लगेंगे दिन. ओके, बट अदरवाइज दिस कैन बी ऑल्सो द आंसर. लेकिन सी आंसर क्यों नहीं होगा, बिकॉज अगर एफिशिएंसी सेम है 30 दिन भी तो लग रहा है. नहीं तो अगर एफिशिएंसी सेम वाला केस नहीं होता, अगर लिख देता है कि बोथ आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, तो फिर सी आंसर हो जाता. बिकॉज 30 दिन से कम भी हो सकता है, 30 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन सेम एफिशिएंट हो जाएंगे तो 30 दिन ही लगेगा. सो सारे सिनेरियोज को अपन को, ऑल द केस सिनेरियोज को अपन को लेना पड़ता है. सो उसके हिसाब से वी नीड टू सी हाउ द थिंग्स प्रोसीड. Okay, now let's move ahead to the next question. I hope this thing is very understood. It may be very tricky at once, but when you see, when you listen to it again and again, when you realize ultimate is efficiency नहीं दी है, कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है वो नहीं पता है. जब तक आपको ये नहीं पता होगा कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, तब तक you can't decide anything about it. Okay, ठीक है, चलिए let's proceed. The next question. This is a relatively easy question. Try to attempt this question. A man complete 7/8 of a job in 21 days. How many more days will it take to him to finish the quantum of a job
इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%। मतलब पहले 100 वर्क था, इतना कुछ काम करना था, अब उसको इतना काम करना है। और इसका उसने 7/8 ऑफ वर्क 21 दिन में कर लिया था, मतलब 1/8 ऑफ वर्क उसका बचा था। ठीक है, तो इसका 1/8 तो बचा है, तो 100/8 कितना दिन लगेगा वो, प्लस 50% ये काम बढ़ गया, तो टोटल कितना दिन लगेगा अपन को वो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। 1-1.5 मिनट का टाइम है आपके पास, सॉल्व करने का ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, सो अपन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, 7/8 तो वर्क कंप्लीट करने में 21 डेज लगते हैं। ठीक है, और क्वांटम ऑफ द वर्क इज इंक्रीज बाय 50%, 50% वर्क इंक्रीज हो गया। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में वो निकालना है। ठीक है, अब क्या हुआ, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, मतलब देखो 7/8 में उसने 21 दिन लगाए, तो एक दिन में कितना टाइम लगा उसको, 7/8 इंटू 21, 1/24, 7 1 जा 7 3 जा, सो एक दिन में वो काम करता है 1/24। सो टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा उसको, 24 डेज। मतलब 1/8 टाइम करने में जो बचा हुआ टाइम है 3 दिन और लगेंगे उसको, और 21 दिन का काम कर चुका है वो। ठीक है, तो अगर नॉर्मल काम करना होता है उसको तो 24 दिन में उसका काम खत्म हो जाता, लेकिन वो काम उसने 50% से इंक्रीज हो गया, इसका मतलब 24 तो आंसर है नहीं। ठीक है, अब वो काम इंक्रीज हो गया है, तब उसको कितने और दिन लगेंगे उसको कंप्लीट करने में वो अपन को निकालना है। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, सो अब पहले तो अपन निकालेंगे कि वर्क जो इंक्रीज हो गया है वो कितना हो गया। सो उसको 100 वर्क करने में कितना लग रहा था, 24 दिन, और आधा वर्क करने में कितना लगेगा, 12 दिन लगेंगे। ठीक है, सो अब वर्क अगर 100 से 50% इंक्रीज हो गया है तो कितना हो गया, 150 हो गया। सो अब 150 वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, 36 डेज लगेंगे। 36 डेज लगेंगे उसको,
और कितना दिन काम कर चुका है, 21 डेज काम कर चुका है वो, कितने दिन और काम करना है उसको, 36 माइनस 21, 15 डेज, तो 15 इज द आंसर। समझ आया कितना सिंपल है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, क्वेश्चन को बहुत सिंपली देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से, और उसको यूनिटरी मेथड सा फॉलो कीजिए। एक बंदा एक दिन में इतना काम करता है, 10 दिन में कितना काम करेगा, सारे सवाल अपने आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वही था, 7/8 डेज में इतना काम कर रहा है, 7/8 डेज में इतना काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में इतना काम करेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा अपन ने वो निकाल लिया। अब पहले 100 काम कर रहा था, 50% से इंक्रीज़ हो गया, 150 हो गया। तो अगर 100 का काम लग रहा है 24, तो 50 आधा करने में कितना लगेगा, आधे दिन लगेंगे, 12 दिन। अगर आपको कुछ काम करने में 4 दिन लग रहे हैं, तो मतलब 2 दिन में आधा काम किया है, बाकी 2 दिन में आधा काम किया, अगर सेम रेट और यूनिफॉर्म चीज़ से आपने अप्लाई किया है, तो ये हो गया। तो टोटल 150 वाला काम करने में कितना टाइम लगेगा अपन को, 36 दिन लगेंगे। और अभी अपन 7/8 काम तो कर ही चुके हैं, 21 दिन का काम कर चुके हैं, तो बचा कितने दिन का काम है, 15 दिन का काम है। So this is how you need to solve, and this is how you can solve these questions. Okay. So yeah, this is the thing. So this you need to do, and this is how we can do this time and work thing. It's easy, but just you need to have a conceptual clarity, how to develop the equation, how to understand and break the question, and then how to follow the uniform approach. Now this is a question, this is a big question, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लीजिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी रहेंगी इस क्वेश्चन में, तो टाइम लेके इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। इन अ गैरिसन देयर इज अ फूड फॉर 1000 सोल्जर्स 1 मंथ, 1 मंथ अपन अज्यूम करके चलेंगे, 30 दिन है यहाँ पे, ठीक है। अब ये मत बोलिए कि सर 30 दिन भी हो सकते हैं, 31 डेज भी हो सकते हैं, फरवरी का महीना हो गया तो 28 दिन भी होंगे, नहीं। इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वी टेक्स अजम्पशन, जो स्टैंडर्ड होता है कि 1 मंथ मीन्स 30 डेज। सो उससे अपने कैलकुलेशंस ईजी हो जाते हैं। आफ्टर 10 डेज 1000 मोर सोल्जर्स ज्वाइन द गैरिसन। सो 1000 सोल्जर्स के लिए इतना खाना था एक महीने के लिए। अब 10 दिन में मान लो इतना खाना ख़त्म हो गया, अब इतना खाना बचा है अभी, ये कितने लोग के लिए बचा है, 1000 सोल्जर्स के लिए बचा है, लेकिन 10 दिन के बाद 1000 सोल्जर्स और हो गए, 2000 हो गए। अब ये बताना है कि खाना कितना चलेगा। अब कॉमन सोचिए, अगर ये पूरा होता 1000 के लिए 30 दिन तक का, और 10,000 स्टार्टिंग से और हो जाते, 2000 लोग कितने दिन में खाते इसको, 15 दिन में खा जाते। मतलब ये खाना 15 दिन में 2000 लोग के लिए होता, लेकिन सो इसका आंसर मतलब 15 तो नहीं होगा, क्योंकि 15 होता तो कैसे काम चलता, और उससे ज़्यादा भी नहीं होगा। अगर पूरा पूरा होता खाना तो भी 15 दिन चलता, तो 15 दिन से ज़्यादा तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, तो ऑप्शन ए और बी आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, तो ये तो अप्रोच हो गई अपनी एलिमिनेशन से, अपन बिना सॉल्व किए इसको आंसर ला दे 10। बिकॉज फिर से मैं समझा देता हूँ, देखो अच्छे से समझो इसको, ये पूरा खाना है, 1000 सोल्जर्स हैं यहाँ पे 30 दिन के लिए। अब मान लो अगर 2000 सोल्जर्स होते सेम फूड के लिए, तो 15 दिन में खा लेते, इक्वली डिवीजन चल रहा है ना, ठीक है। सो 15 दिन में खा लेते। अब 25 दिन और 20 दिन तो खाना चल ही नहीं सकता ना भाई साहब। सो अब क्या चलेगा, अब मान लो सिचुएशन ये दी है कि ये खाना है 1000 सोल्जर्स का था 30 दिन के लिए, तो 10 दिन में उन्होंने 1/3 खा लिया इसका। अब कितना बचा, 2/3 बचा है। अब इस 2/3 खाने के लिए 20,000 लोग आ गए, मतलब 2000 आ गए, 10,000, 1000 प्लस 1000 और। अब ये खाना कितने दिन चलेगा, नॉर्मल होता तो 20 दिन चलता, अब कितने दिन चलेगा, तो 20 से तो कम चलेगा, 20 से तो कम ही दिन चलेगा ना, तो ये दोनों वैसे आपसे एलिमिनेट हो गए, अब बचते हैं ये दो। और अगर पूरा खाना होता तो 15 दिन चलता,
तो 15 दिन भी खाना ख़त्म हो गया, ये थोड़ा सा 1/3 ऑफ खाना तो ख़त्म हो गया, तो और कम चलेगा। सो ऐसे एलिमिनेशन से आपका आंसर आ गया सी और 10, और 10 ही आंसर है। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व होगा ये। चलो इसका एक्चुअल सोल्यूशन क्या है। सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखिए। 1000 सोल्जर्स 30 डेज, 10 डेज के बाद 1000 और आ गए। ठीक है, सो अपन मानते हैं एक मैन 1 सोल्जर ईट्स 1 यूनिट ऑफ फूड। ठीक है, सो टोटल फूड बाय 1000 सोल्जर्स वुड बी 1000 यूनिट्स। ठीक है, एक दिन की बात चल रही है, और 10 दिन में 10,000 यूनिट्स, और टोटल फूड कितना होता 30,000 यूनिट्स। सो आफ्टर 10 days फूड लेफ्ट इज इक्वल्स टू 20,000 यूनिट्स। ठीक है, ये समझ आया कि 10 दिन बाद 20,000 यूनिट्स का खाना बचा है, बिकॉज स्टार्टिंग से वी हैव 30,000 यूनिट्स फूड, 10,000 units of food is consumed in the first 10 days. Now remaining is 20,000 units food. So food remaining 20,000 units. और अब यहाँ पे 1000 सोल्जर्स से प्लस 1000 हो गए, 2000 सोल्जर्स हो गए अपने पास। और अपन को पता, अपन ने भी देखा था एक मैन 1 यूनिट खा रहा है। 100 मैन एक दिन में कितना हो रहा था 1000 यूनिट्स हो रहे थे। सो 20,000 सोल्जर्स हैं, 2000 सोल्जर्स हैं, एक दिन में 1000 यूनिट्स चल रहा है। ठीक है, तो ये कितना था 1000 सोल्जर्स खा रहे थे, 2000 सोल्जर्स से एक दिन में कितना खाएंगे, एक दिन में 2000 सोल्जर्स खाएंगे 2000 यूनिट्स, क्योंकि पर बंदा 1 यूनिट खा रहा है, तो 2000 बंदे 2000 यूनिट्स खाएंगे एक दिन में। टोटल फूड कितना है अपने पास 20,000, और एक दिन में कितना खत्म हो रहा है 2000, तो कितने दिन लगेंगे आपको 10 दिन। सो 10 दिन उस खाना और चलेगा बस। ठीक है, समझ आ गया। सो दोनों अप्रोचेस से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं अपन एलिमिनेशन से, जो अपन ने पहले मैंने करके दिखाया, और अगर एलिमिनेशन किसी को नहीं बन रहा है तो नॉर्मल ये अप्रोच फॉलो करके भी कर सकता है। लेकिन आपको ये चीज़ देखनी है कि नॉर्मल करने में अपन को कितना टाइम लगा, और
अगर अपन सिर्फ उससे कर रहे होते एलिमिनेशन से तो कितना टाइम लगता। एलिमिनेशन से अपना क्वेश्चन एकदम चुटकियों में हो गया, 1.5 मिनट में ख़त्म हो गया, और ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगा। सो ये चीज़ आपको डेवलप करनी है, बिकॉज सीसेट में टाइम मैनेजमेंट इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्वेश्चंस आर लेंदी, पैसेजेस आर वेरी लेंदी, एंड यू नीड टू मैनेज टाइम टू सॉल्व द 80 क्वेश्चंस इन 2 hours। सो क्वेश्चंस आर इजी, बट यू नीड टू डेवलप द ट्रिक्स। आपको शॉर्टकट्स अपनाने हैं, ट्रिक अपनाने हैं, अंडरस्टैंडिंग तेज करना है, ताकि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, सो यही अप्रोच है अपनी, इसी को सॉल्व करना है। सो समझ आया, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखते हैं कैसे क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टैंक ऑफ पेट्रोल इन अरुण मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 days। तो पेट्रोल कितना 10 दिन चलेगा, तो 10 दिन में 100% ख़त्म हो जाएगा वो। इफ़ स्टार्ट यूजिंग 25% मोर एवरी डे, सो मतलब एक दिन में कितना यूज़ करता है वो, एक दिन में 100/10 10/100 इज इक्वल्स टू 1/10। एक दिन में 1/10 यूज़ करता है। अब 25% मोर यूज़ करता है, अगर 25% ज़्यादा यूज़ करेगा मतलब 1/10 प्लस 25% ऑफ 1/10। ठीक है, सो अगर मान लेते हैं 1 की जगह अपन इसको ऐसा एज्यूम करते हैं कि उसके पास 1000 लीटर था, मतलब एक दिन में वो 100 लीटर पेट्रोल यूज़ करता है अरुण। सो 10 दिन में कितना यूज़ करेगा, 1000 लीटर। ठीक है, अब पर डे उसका ये 25% से इंक्रीज हो गया। सो एक दिन में वो कितना यूज़ करने लगेगा, 125 लीटर्स। हंड्रेड प्लस 25 से। ठीक है, अब कितने दिन चलेगा 1000 लीटर पेट्रोल, अपन को ये देखना है। बस टोटल पेट्रोल उसके पास था 10,000 लीटर, अब एक दिन में चल रहा है 125। सो 10,000 बाय 125 इट विल गिव यू 8 days। ठीक है, सो हाउ मनी डेज द टैंक विल लास्ट, 8 days के लिए। पहले 10 दिन के लिए था, लेकिन 25% ज़्यादा यूज़ करने लग जाएगा तो 8 days के लिए चलेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब इसमें मैंने कोई फॉर्मूला या कोई भी चीज़ नहीं लगाई, इसमें जैसे अपन को यूनिटरी मेथड लगानी है। सो दिस चैप्टर टाइम एंड वर्क जस्ट डिमांड्स अबाउट द यूनिटरी मेथड। ठीक है, और डोंट कंफ्यूज दिस चैप्टर विद द स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वी डिस्कस्ड अर्लियर। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में 2-3 फॉर्मूलेस थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको अपन इंप्लीमेंट करते थे, और यहाँ पे से अपन को ये इंप्लीमेंट करना है यूनिटरी मेथड, और क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। राम एंड श्याम विल वर्क जॉब टुगेदर फॉर 4 days। 60% वर्क काम खत्म करते 4 दिन में, फिर राम चला जाता है, श्याम विल वर्क फॉर 8 more days। हाउ लॉन्ग राम वुड टेक टू कंप्लीट द जॉब अलोन। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स ए इजी क्वेश्चन एज वी हैव डिस्कस अर्लियर। So what is this question says? राम प्लस श्याम एक दिन में काम करते हैं, मतलब
आर और राम और श्याम मिलके 60% ऑफ वर्क करते हैं 4 डेज में, ठीक है, 60% ऑफ वर्क करते हैं 4 डेज में। तो टोटल वर्क कब तक ख़त्म करेंगे वो? 4 इंटू 10/6 इतने में करेंगे। मतलब 60% उन्होंने अगर 4 दिन में ख़त्म कर दिया तो 40% कितने दिन में करेंगे? मीन्स 10% उन्होंने कितने दिन में ख़त्म किया टाइम? 4/60 में किया कि नहीं किया? 60% इसमें किया उन्होंने, तो 4/6 से उन्होंने किया 10% का काम। अब आपको 40% निकालना है, 40% काम तो इसमें हो जाएगा, ठीक है। ना आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या समझ आता है अपन को कि राम एंड श्याम का 1 डे का वर्क होगा 60% इंटू 1/4, क्योंकि 60% ने 4 दिन में काम किया था, तो ये हो जाएगा 15/100 वर्क। ये 1 दिन का वर्क है, ठीक है। और श्याम का 8 डेज का वर्क कितना होगा? श्याम के दिन का, उसमें क्या लिखा है? राम टेक्स लीव, 8 दिन बाद राम चला जाता है, श्याम वर्क्स फॉर द 8 more days टू कंप्लीट द जॉब। मतलब श्याम 8 दिन में कितना काम करता है? रिमेनिंग 40% ऑफ द काम। तो रिमेनिंग 40% ऑफ द काम 8 दिन में पूरा कौन करता है? श्याम करता है। तो 8 डेज ऑफ वर्क उसने कितना किया? 40%, 40/100 ऑफ द वर्क, ठीक है। तो श्याम का 1 दिन का वर्क कितना हुआ? 40/100 इंटू 1/8, ये कितना हुआ? 5/100, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं। राम प्लस श्याम 1 डे में कितना वर्क करते हैं? 15/100। और श्याम अकेला 1 डे में कितना वर्क करता है? 5/100। समझ आया? ये चीज़ समझ आई हर किसी को? श्याम अकेला करेगा 5/100 में, और राम और श्याम मिलके 1 दिन में कितना काम करते हैं? 15/100। इसका मतलब क्या है? अगर आर प्लस श्याम मिलके 1 दिन में इतना काम कर रहे हैं, और श्याम कितना काम कर रहा है? 5/100, तो राम कितना काम करेगा? तो राम काम करेगा 15/100 माइनस 5/100 इज इक्वल्स टू 10/100। ये राम का वर्क है पर डे में। अब उसने पूछा है हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन। एंटायर जॉब पूछा उसने, फुल। 1 दिन में राम टेक्स 1/10, कंप्लीट जॉब के लिए उसको 10 डेज लगेंगे, ठीक है। कंप्लीट जॉब फुलफिल करने के लिए उसको 10 डेज लगेंगे, इसलिए आपका ये आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। समझ आया? ना नेक्स्ट क्वेश्चन। A frog tries to come out of a dried well 4.5 meter deep. स्लिपरी वॉल्स हैं, एवरी टाइम 30 सेंटीमीटर आगे जाता है, 15 सेंटीमीटर पीछे आता है। सो नेट 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ रहा हो। और जंप्स कितने रिक्वायर्ड है अपन को वो निकालना है। सो टोटल कितना है? 450 सेंटीमीटर। और अगर आपने डायरेक्ट किया 450 डिवाइडेड बाय 15,
सो आपका आएगा 30, लेकिन ये आंसर गलत है। सो क्यों गलत है उसको देखिए, बिकॉज 28 स्टेप्स तक कितना होगा, 28 इंटू 15 कीजिए, 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 14, 0 12 4 420। सो 28 जम्प्स में ये 450 का था, वो 420 यहाँ तक आ चुका है। अब टोटल कितना बचा है, 30 बचा है ना, 450 ही का ही तो है। तो नेक्स्ट जंप जो ले लेगा वो तो सीधे वेल से बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जंप में फ्रॉग विल कम आउट ऑफ द वेल, तो देयर इज नो वुड बी टू स्लिपली, 15 सेंटीमीटर नीचे माइनस नहीं होगा लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में से 30 ऐड होगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 29, बिकॉज उसको बाहर ही नहीं आना है। ठीक है, तो सीधे वो 28 स्टेप्स में 420, 29 में बाहर आ जाएगा। अगर डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 30 आएगा, 30 आंसर नहीं होगा। सो बी केयरफुल। Now the thing is, X complete 20% of the work in 8 days. And Y completes 25% of the same work in 6 days. If they work together, in how many ways will 40% of the work be completed? ठीक है, टुगेदर की बात चल रही है। सो 20% काम 8 डेज में करता है X, सो टोटल कितना टाइम लगेगा उसको, 40 डेज। ठीक है, सो X को टाइम लगेंगे टोटल 40 डेज, Y को टाइम लगेगा टोटल 24 डेज। सो एक दिन में कितना टाइम हो, एक दिन में कितना काम होगा इनसा। सो पर डे X का काम होगा 1/40 और Y का होगा 1/24, और X प्लस Y दोनों मिलेंगे अगर, सो कितना काम करेंगे, 1/40 प्लस 1/24। ठीक है, इतना करेंगे। अब इसको आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा इसको, 24 प्लस 40 अपॉन 24 इंटू 40, 64 अपॉन 24 इंटू 40, 2 32 ज़ा 2 20 ज़ा 2 10 ज़ा 2 16 ज़ा। ठीक है, 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा, तो कितना हुआ, 2/30, 1/15। ठीक है, सो टोटल डेज लगेंगे उनको 15 डेज पूरा वर्क करने में। अब 40% ऑफ द काम करने में कितना दिन लगेगा अपन को वो निकालना है। सो 100% काम करेंगे वो 15 डेज में। सो 1% काम करेंगे वो 1/15 में। सो 40% काम कब करेंगे वो, 1/15 इंटू 40%। ठीक है, और इसको अपन और उसमें देखते हैं। सो क्या देखा था, Y का 25% 6 डेज था। सो Y मान लो 25 वर्क कर रहा है 6 दिन में। सो 1 दिन में करेगा 25/6,
ठीक है। और सिमिलरली एक्स का वर्क करेगा कितना, 20W, मतलब एक्स का क्या था 20% 8 डेज में, ठीक है। सो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 20 वर्क बाय 8, 20/8 मतलब 5W/2, तो एक्स का कितना हो जाएगा 5W/2 एक दिन का, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई दोनों का काम कितना हो जाएगा, $5W/2 एक्स का प्लस वाई का 25W/6, सो ये कितना होगा 40W/6 होगा। एलसीएम लेंगे आप, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 15W प्लस 25W/6 इज इक्वल टू 40W/6। ये टोटल वर्क हो गया 100%। ना 40% ऑफ द वर्क कितने दिन में काम करेंगे, सो 40%, 40/100 इंटू 100 ऑफ वर्क, ये कितना होता है, ये होता है आपका 40W, ठीक है। 40W होता है टोटल वर्क, 40% ऑफ द वर्क, और एक दिन में वो काम कर रहे हैं 40W/6। सो 40W वर्क कब करेंगे, 6 दिन में, 6 days। Therefore the answer of this would be 6, ठीक है, सिंपल। सो ऐसे अपन ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग, P works thrice as fast as Q, so P is equals to 3Q हो गया। P and Q together work in 4 times an hour, P plus Q is equals to 4R हो गया। अब P plus Q plus R तीनों साथ में काम कर रहे हैं, तो रेशियो क्या होगा उनके नेक्स्ट का, P की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो 3Q plus Q is equals to 4R, so Q is equals to R हो गया। So now P is equals to 3Q and Q is equals to R, so रेशियो क्या हो गया, P is to Q is to R निकालना है, से हो जाएगा Q और R का तो 1-1 हो गया, तो 1-1 कहाँ पे है, देखो एक ही ऑप्शन में लो, सीधा आंसर आ गया। और P is to Q 3Q है, तो ये हो जाएगा 3:1:1, ठीक है, इजी। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था अपना अभी तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम लाइन ऑफ क्वेश्चन है जो अपन ने पहले किया। W कैन डू 25% ऑफ द वर्क इन 30 days, X 1/4 of the work in 10 days, Y will do 50% of the work 40 days, Z can do 1/3 of the work in 13 days. Who will complete the work earliest? So 25% of the work 30 दिन में कर रहा है, तो 100% बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, so 120 days will be take to complete the work, एंड 1/4 ऑल्सो, तो पूरा वर्क का ये भी 25% ही होता है 1/4 भी, तो 4 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आएंगे 40 days। एंड वाई विल 50 days 40 days में, तो पूरा काम करेगा डबल में 80 days, बिकॉज बच्चा को 50% करने में 40 दिन तो लगेंगे ना उसको, तो 80 days में पूरा हो जाएगा। और 1/3 कर रहा है 13 days में, इंटू 3 करो 100% काम के लिए 39 days। So, who is doing the work earliest? Z. $39 days, ठीक है। So D हो गया अपना आंसर। Similarly, now moving to the last question. Two pipes A and B can independently fill a tank completely in 20-30 minutes. ये A पाइप है, ये B पाइप है। इस टैंक को इंडिपेंडेंटली फुल करते हैं 20 मिनट में, ये करता है 30 मिनट में। दोनों को आपने साइमल्टेनियसली ओपन कर दिया। हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली। अब दोनों को टुगेदर फिल करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 अप्रोच है, ठीक है। अब एक पार्ट में ए कितना फिल करता है 1/20 1 मिनट में, और बी कितना करता है 1 मिनट में 1/30, ठीक है। और ए प्लस बी मिलके कितना करेंगे 1/20 प्लस 1/30,
50/600 1/12। सो a प्लस बी मिलके 1/12 करेंगे, ठीक है। सो a प्लस बी 1 मिनट में 1/12 को फिल करेंगे। तो टोटल फिल करने में कितना टाइम लगेगा? 12 मिनट। टोटल फिल करने में उनको 12 मिनट लगेंगे, ठीक है। सो ये अपना आ गया आंसर बी, 12 मिनट्स। So see how simple things become by just following the unitary method, unitary approach, and we can solve the questions by solving the unitary method. So time and work questions ऐसे ही हैं, सारा ऐसा ही कंटेंट है अपना, उसमें कोई there is no formulas and no thing in time and work, just the unitary method, unitary approach. You just need to have a logical thinking, logical approach कि एक दिन में इतना काम हो रहा है तो 2 दिन में कितना काम करेगा. The only thing is you need to think one day work, बोथ दोनों मिलके 1 डे में कितना काम करेंगे, एंड देन मल्टीप्लाई इट विद द टोटल डेज, टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा 10. दैट्स द ओनली थिंग विच यू नीड टू डू, एंड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेंदी है, प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस वुड मेड यू मोर परफेक्ट, और जो फियर है उसका वो निकलेगा. और अदरवाइज इफ यू फील कॉम्प्लिकेटेड, एट द एंड द लास्ट ऑप्शन इज वी कैन स्किप दिस क्वेश्चन. बट practicing this, don't feel disheartened. Just there is no formula in this, just a concept is present, and by applying the concept we would be able to solve these kind of questions. So okay, thank you and all the best.